story, Martha and Mary had to make a decision. तो आज की कहानी में मार्था और मरियम को एक निर्णय लेना था। Yeah, the opening verse, the opening line of this passage says, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. और शुरुआत में लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री उसे अपने घर में उतारा। So Martha decided to have Jesus and his disciples as guests to their home. तो मार्था ने निर्णय किया कि यीशु और उसके चेले मेहमान की तरह उसके घर में आएंगे। Just as any of us, when we know we have guests, we start preparing. We have to do a lot of things, isn't it? और जैसे हम सभी, अगर हमें पता है मेहमान घर में आ रहे हैं, तो हम चीजों की तैयारी करने लगते हैं, हाँ या नहीं? She had to make probably best food so that guests will be happy. She was wondering whether it will be nice, whether what else will be required. Will they be satisfied? All those questions she must have gone through. वो सोच रही थी कि हाँ, सबसे अच्छा खाना बनाना है कि मेहमान खुश रहे। हाँ, मैं कैसे उन्हें खुश कर सकती हूँ, क्या चीजें कर सकती हूँ? Maybe I guess there will be 15-20 people and lot of work for cooking for so many people. शायद 15 से 20 लोग आने वाले होंगे और उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत काम होता है। So it is natural for Martha to get worried or to get worked up. तो स्वाभाविक है कि मार्था चिंतित हो जाएगी इन बातों से। That is why verse 40 says, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. और इसलिए वचन 40 में लिखा है कि जो सारी तैयारियां करनी थी उसको लेकर मार्था जो थी चिंता में थी, उसका ध्यान भटका हुआ था। Can we learn few things from this passage? क्या हम इस अध्याय से कुछ बातें सीख सकते हैं? आइए हम उनकी ओर देखते हैं। What could Martha worry about? किन बातों की मार्था को चिंता हो सकती थी? Worry or anxiety that we go from in a day-to-day life. और जो चिंताएं हम प्रतिदिन सहते हैं, we need to make choices every day. और हमें हर दिन चुनाव करने होते हैं। And it's about intimacy with Jesus. और यीशु को लेकर, करीबी रिश्ते को लेकर, at the feet of Jesus. यीशु के चरणों में। And when we do that, what's the outcome? और जब हम वो करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है? Filled with the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं decisions. और हमें निर्णय लेने में मदद मिलती है। Most of us are like this. Firstly, I want to say, we want to do everything on our own, isn't it? ज्यादा करके हम ऐसे होते हैं लोग, हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ बस खुद करना है, अपने आप करना है। Yeah, many things we need to do on our own. हाँ, कई चीजें हैं जो हमें अपने आप करनी होती है। Generally, we do it on our own, everything. लेकिन ज्यादा करके ऐसा होता है, हम सब कुछ अकेले करते हैं। We all have, or most of us felt the struggle. Do you agree? When we work, when we do things. और हम में से ज्यादा लोग इस संघर्ष का सामना करते हैं। क्या आप सहमत है जब हम चीजें अकेले करते हैं? Now here Mary and Martha had a decision, had a choice to worship Jesus or to go and do cooking. अब मरियम और मार्था के पास यहाँ पर एक निर्णय था या चुनाव था कि या तो किचन में जाकर काम करना है या यीशु के चरणों में उसकी आराधना करनी है। In the midst of your own busyness, deep inside of us, there is a hunger, a desire to know and love God, isn't it? और हमारी व्यवस्था के मध्य में भी हमारे अंदर वो चाहत होती है या भूख होती है कि हम यीशु को और भी जानना चाहते हैं। To truly know Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit. कि हम सच में यीशु मसीह को जाने और पवित्र आत्मा के साथ में संगति करें। Yeah, you don't just want knowledge, head knowledge, but you want a heart-to-heart intimacy with God. हम बस मन का ज्ञान नहीं चाहते हैं, लेकिन हम हृदय जुड़ जाए यीशु के साथ, उसके साथ करीबी रिश्ता हो, ये चाहते हैं। Yes, you want क्या आप it. सहमत हैं? क्या आप वो चाहते But हैं? you find it difficult. लेकिन आपको कठिनाई होती है उसमें। In most of our lives, this part of being intimate with Jesus just remains behind. और हमारे ज्यादातर जीवन के भाग में ये जो भाग है जहाँ पर हम यीशु के करीब में आए, वो पीछे रह जाता है। When we are Christians, we need to grow in intimacy with Jesus. और जब क्योंकि हम मसीह हैं तो हमें जरूरी है हमारे लिए कि हम यीशु के साथ करीबी रिश्ते में हो। But on the other side, we get tired with our daily work. लेकिन दूसरी ओर देखें तो हम प्रतिदिन के कामों में थक जाते हैं। We wonder how to find strength and time. और हम संघर्ष करते हैं कि ताकत कहाँ से मिलेगी, समय कहाँ से मिलेगा। Yeah, developing your spiritual life seems like
one more duty to be added. और अगर आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो हमें लगता है अभी एक और काम है वो बढ़ गया है या जुड़ गया है। Yeah, already there are so many responsibilities, and this one. पहले ही इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और अब ये एक और, ऐसा हम सोचते हैं। You feel God is up somewhere there, and you just feel He is unreachable. और आप सोचते हैं कि परमेश्वर कहीं है वहां पर ऊपर और मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता हूँ। Yeah, as you look upward, you are not sure how to begin. You keep wondering. और जैसे आप ऊपर की ओर देखते हैं तो आप सोचते हैं, आपको पता नहीं कि कहाँ से शुरुआत करनी है और आप भटक जाते हैं एक प्रकार से। Yeah, you don't even want to try it out. आप कोशिश भी नहीं करना चाहते हैं The climb looks difficult. और वो चढ़ाई जो है वो आपको मुश्किल लगती है। But to do nothing means you will miss what you all have with you. अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे अगर, तो जो आपके पास है उसे भी आप खो देंगे। Yeah, there is always more to the Christian life than what we have already experienced. और हमने जो पहले से अनुभव किया है मसीह जीवन में, हमेशा उससे कुछ ज्यादा रखा होता है हमारे लिए। Mary had chosen what is better. और मरियम ने वो चुना था जो उत्तम था। Now, I say to God, I already have so many activities to do. You mean I have to do more? और हम परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु मेरे पास पहले से ही इतने सारे काम है करने के लिए और तुम चाहते हो कि मैं और करूं। And from you the answer comes, or from me answer comes, no, I don't want additional. और अंदर से आपके वो जवाब आता है, नहीं, मुझे और नहीं चाहिए। It isn't more that Jesus requires of us. In fact, it may be less. ऐसा नहीं कि यीशु हमसे ज्यादा चाहता है, दरअसल हकीकत ये हो सकती है कि कम हो। Yeah, David, when he was going through a troubled time, this is what he talks to God in और Psalm दाऊद जब 63. मुश्किल से गुजर रहा था, वो परमेश्वर से ये बातें करता है भजन संगीता 63 में। You, God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you in a dry and a parched land where there is no water. वचन 1, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। And why David can say that? Because he has experienced God. और वो ये क्यों कह सकता है? क्योंकि Verse 2 and 3 says, परमेश्वर का अनुभव किया है। he says in verse 2 and 3, I have seen you in sanctuary and beheld your power and your glory. Because your love is better than life, my lips will glorify you. और वचन 2 और 3 में लिखा है, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। So let's keep aside trying to do everything on our own. Let's come to God. तो आइए वो चीजों को हम बाजू में रख दे कि सब कुछ हम अकेला करना चाहते हैं और हम परमेश्वर के पास आ जाए। Now let's look at another thing. What Jesus didn't say in this passage. आइए हम उन बातों को देखते हैं जो यीशु ने नहीं कही है इस अध्याय में। Between Mary and Martha, whom do you like most? मरियम और मार्ता के बीच में आप किसे ज्यादा पसंद करते हैं? I'm talking about this Bible verse. Okay, let's go. फ्रैंको ने मैरी कहा। Okay, any answer? कौन सा किरदार आपको ज्यादा पसंद Before है? I give you the answer. इससे पहले माइकल जवाब दे, आप अगर जवाब देना चाहते हैं तो। Now this is interesting that when Jesus corrected Martha, he didn't say, why can't you be more like your sister Mary? और ये बहुत ही अजीब बात है कि जब यीशु ने मार्था को सही किया तो उसने ऐसा नहीं कहा कि तुम तुम्हारी बहन मरियम की तरह क्यों नहीं हो जाती हो। I am sure he knew Martha would never be Mary and Mary would never be Martha, isn't it? क्योंकि वो जानता था कि मरियम कभी मार्था नहीं बन सकती है और मार्था कभी मरियम नहीं बन सकती है। But when the two were faced with the same choice, to work or to worship, Jesus said, Mary has chosen the better part. लेकिन जब दोनों के बीच में ये चुनाव था कि काम करे या यीशु की आराधना करे, तो मरियम ने जो उत्तम है वो चुना, ऐसा यीशु ने कहा है। So the better part was available to both of them, but one of them chose one.
तो उत्तम जो मार्ग था वो दोनों के लिए उपलब्ध था, लेकिन एक ने चुना वो मार्ग। I want to tell you it's available to you and me also, regardless of our gifting or personality. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो अभिव्यक्त है या हमारे जो वरदान है, उसके बावजूद भी ये दोनों बातें हमारे लिए भी उपलब्ध है। Yeah, it's the choice that you and me have to make. और ये चुनाव है जो आपको और मुझे करना है। Let's move on. Bible isn't clear whether Jesus's visit to this house was the first visit. और बाइबल ये स्पष्ट नहीं बताती है कि यीशु जो इस घर में गया है, वो क्या पहली बार गया है। But even then, when Jesus comes to this house, Mary is not worried about the traditions at that time, how how the women would behave. और जबकि यीशु आता भी है तो मरियम इस बात से चिंतित नहीं है जो उस समय की प्रथाएं थी महिलाओं को लेकर। In those days, women probably would not sit among the men to study or to listen. और उन दिनों में शायद महिलाएं जो है वो पुरुषों के बीच में सीखने के लिए या सुनने के लिए नहीं बैठ सकती So थी। Mary breaks this barrier and she goes and sits near Jesus. तो मरियम जो है वो ये जो रुकावट है उसे तोड़ देती है, वो जाती है और यीशु के पास बैठ जाती है। Yeah, she's not bothered what disciples are saying or they are making any comments. और वो इस बात की चिंता नहीं कर रही है कि चेले क्या कह रहे हैं और क्या बातें हो रही है उसके बारे में। Yeah, somewhere she is hearing her name, somebody is calling her, but she is engrossed in listening to Jesus so much that that doesn't affect her. और कोई तो कहीं उसका नाम बुलाता है, लेकिन वो यीशु को सुनने में इतनी लवलीन है कि उसे कुछ ध्यान नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, बस यीशु पे उसका ध्यान केंद्रित है। Amen. She just accepts the opportunity to come to the master. और बस वो मौका जो उसे मिला है कि अपने सेवक के पास वो अपने मास्टर के पास वो आए, प्रभु के पास वो आए, उसका वो फायदा ले रही है। Yeah, at Bethany, Martha had to face guests that have come suddenly. और शायद ऐसा था कि ये जो मेहमान है वो अचानक आए हैं। Yeah, we also, when things happen suddenly, we face struggles. We have to make choice, and in such times, और चीजें जब अचानक से होती है, ऐसे संघर्ष का हम भी सामना करते हैं, हमें चुनाव करना पड़ता है। we want to worship. We want to sit at the feet. हम आराधना करना चाहते हैं, हम यीशु के चरणों में बैठना चाहते But हैं। part of us, there is Martha, and there is still so much to do. We keep thinking, "Arey, itna sab kuch karna hai. I have to do so much. How do I choose better part?" लेकिन हमारे अंदर का एक भाग है वो कहता है कि मेरे पास इतना काम है करने के लिए, मैं कैसे करूं, लेकिन हमें जो उत्तम मार्ग है उसे चुनना है। Jesus is best example for us. और यीशु हमारे लिए उत्तम उदाहरण है यहाँ He पर। was never in a hurry. वो कभी जल्दबाजी में नहीं था। Somehow he had, someone has said that Jesus went from one place of prayer to another place of prayer. और किसी ने कहा कि यीशु प्रार्थना करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था। And he did miracles in between time. और उस बीच के समय में वो चंगाई करता था। He was so constantly connected and in tune with God. और वो लगातार परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता था, परमेश्वर के साथ उसकी धुन दोनों की साथ में थी। None of his actions were wasted, not a single word that fell down. और उसके कोई भी काम व्यर्थ नहीं गए, उसका एक भी शब्द नहीं हारा। Yeah, this is our Jesus. और ये हमारा यीशु है। This is the intimacy that Jesus invites us to share. और यही करीबी रिश्ता है जो यीशु हमें बुलाता है, आमंत्रण देता है, बांटे हम उसके साथ। Yeah, he invites us to know him. वो हमें आमंत्रण देता है कि हम उसे जान ले। To see him clearly, that when we look to him, we see the face of God. और उसे हम स्पष्टता से देखें, ताकि हम जब उसकी ओर देखते हैं तो हम परमेश्वर के चेहरे को देख पाए। Just as he welcomed Mary to sit at his feet, जैसे उसने मरियम को ये आमंत्रण दिया कि उसके चरणों में बैठे, he also must have encouraged Martha to leave the work for a little time and come and join. वैसे उसने मार्था को भी प्रोत्साहन दिया होगा कि कुछ समय के लिए अपना काम छोड़ दे और उसके चरणों में आकर बैठ जाए। Jesus calls us to come. और यीशु हमें भी बुलाता है कि आओ। Franco brought that prophecy today. We need to go to the mountain to meet God. और
फ्रैंको ने वो भविष्यवाणी लेकर आए आज कि हमें पहाड़ पर जाना है Yeah, ये Isaiah 50, परमेश्वर से मिलने के लिए। Isaiah 55, 1 and 2, it says God is telling us, और यशायाह 55 1 और 2 में परमेश्वर हमें कह रहा है, come, all you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost. वचन 1 में लिखा है, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिन दाम ही आकर ले लो। Why spend money on what is not bread and your labor on what does not satisfy? Listen to me and eat what is good, and you will delight in the richest of fare. जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। Amen. Jesus reminds us, he says, remain in me as I remain in you. और यीशु हमें प्रोत्साहन देता है, याद दिलाता है, मुझ में बने रहो जैसे मैं तुम में बना रहता Now, हूँ। no branch can bear fruit by itself, it must remain in the vine. और कोई डाली अपने आप से फल नहीं ला सकती है, उसे दाख मधु में बना रहना है। Neither can you bear fruit unless you remain in me. और तुम भी फल नहीं ला पाओगे जब तक तुम मुझ में न बने रहो। Yeah, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart Amen. from me, you can do nothing. और मैं दाखरस हूँ, तुम डाली हो, यदि तुम मुझ में बने रहो तो तुम अधिक फल लेकर आओगे, मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। Amen. Yeah. Now, in the midst of all this, one more thing I want to share. God wants us to be still. और इन सभी बातों के बीच में एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हम स्थिर रहे, शांत रहे। Yeah, let's understand this. आइए हम इसे समझ ले। The intimacy Mary enjoyed with Jesus will never come out of the busyness of Martha's kitchen work. और जो करीबी रिश्ता मरियम ने यीशु के साथ जिसका आनंद लिया, वो कभी मार्ता के व्यस्त किचन से नहीं निकल कर आ सकता है। Yeah, busyness means distraction. और व्यस्त रहने का मतलब यही है कि ध्यान भटका हुआ है। Luke 10:38 reminds us that woman Martha, she had a gift of hospitality. और लूका के 10वें अध्याय 38वें वचन हमें याद दिलाता है उस महिला के बारे में कि उसके पास अतिथि सत्कार का वरदान था। Yeah, now even Martha opened the door for them to have meal, but probably she did not open her heart to Jesus. और मार्था ने उनके लिए अपना घर खोला भोजन के लिए, लेकिन शायद उसने अपने हृदय को नहीं खोला था Yeah. यीशु के लिए। She was so gripped with what she had to do. और वो इतनी व्यस्त थी उन चीजों में जो उसे करना चाहिए। In Martha's mind, nothing less should be given. She had to go all out to serve and give the food. और मार्था के मन में ऐसा था कि कुछ कमी नहीं होना चाहिए, जितनी हो सके मुझे सेवा करनी है और सब कुछ मुझे देना है। Many years back, we remember Patricia and I, even Franco and Sweden, they were to come to our house. और कई साल पहले मुझे याद आया कि जब फ्रैंको और स्वीटन हमारे घर आए थे, We were so excited. तो मैं और पेट्रिशिया हम बहुत ही उत्साहित थे। And those who know Patricia's cooking, she loves to cook. और जिन लोगों को पेट्रिशिया के खाना बनाने के बारे में पता है, उसे खाना बनाना बहुत And पसंद है। she prepared lovely meal and wonderful dishes. और उसने बहुत अच्छा भोजन तैयार किया, बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। Franco Sweden came, they spent time, they taught us few things and we learned many things. और फ्रैंको स्वीटन आए और उन्होंने समय बिताया, हमें सिखाया कई बातें। Yeah, we realized that it's not about just eating, it's about fellowshipping, it's about learning from one another. और हमें यह एहसास हो गया कि सिर्फ खाने को लेकर बातें नहीं है, संगति के बारे में है, एक दूसरे के साथ प्रेम बांटने के बारे में ये बातें हैं। Yeah, we can get caught in the performance trap or doing things, feeling as if we must prove our love for God by doing things or just keep doing, pushing away quality time with Jesus and get busy in the work. और हम प्रदर्शित करने के लिए चीजें करने में
व्यस्त हो सकते हैं ये बताने के लिए कि हाँ ये परमेश्वर के लिए हमारे सेवा है, लेकिन इस प्रकार से जो उत्तम समय हमें परमेश्वर के साथ बिताना है उसे हम खो देते हैं या बाजू में रख देते हैं। Recently, I had an opportunity to minister to someone. और हाल ही में मुझे मौका मिला किसी की सेवकाई करने का, Me with somebody else helped this person to connect with God. और मैं और किसी और की मदद लेकर हमने इस व्यक्ति की मदद की परमेश्वर के साथ जुड़ने में। Yeah, last 25 years, this person is saving very nicely to God and doing very many things. और गए 25 वर्षों से यह व्यक्ति Serving. परमेश्वर की सेवा कर रहा है और परमेश्वर के लिए कई चीजें कर रहा है, Yeah, but he had no peace. लेकिन इस व्यक्ति के पास शांति नहीं थी And he was disturbed with some problem in the family. और उसके परिवार में कोई मुश्किल थी, उसको लेकर वह बहुत चिंतित था। Yeah, the need for this person was to connect with God. और इस व्यक्ति की जो जरूरत थी वो ये थी कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। He had to come to a place where he had to say, I need you, Lord. I need you, Jesus. और उसे इस स्थान में आने की जरूरत थी, ये कहने की जरूरत थी कि मुझे तेरी जरूरत है यीशु, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। Yeah, when he asked this and he committed himself again to the Lord, tears rolled down from his eyes. और जब उसने ये कहा और फिर से अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। He needed to be intimately connected with Jesus. उसे जरूरत थी कि वो यीशु के साथ करीब से जुड़ जाए। Yeah, principles of kingdom of God and the worldly principles are entirely opposite to each other. और परमेश्वर के राज्य के जो सिद्धांत है और दुनिया के सिद्धांत है वो एक दूसरे से विपरीत है, बिल्कुल Yeah. अलग है। While the world applauds on your achievements, only on your achievements, God desires companionship. और आप जो चीजें हासिल करते हैं, पाते हैं, उसको लेकर दुनिया तालियां बजाती है, Yeah, the लेकिन world tells यीशु you, sorry. Yeah. लेकिन यीशु को आपका समय चाहिए, आपके साथ रिश्ता चाहिए। Yeah, the world tells you, do more, do more. और दुनिया कहती है और करो और करो, But our God the Father, He whispers. लेकिन पिता हमारा परमेश्वर जो है वो फुसफुसाता है। He says, be still and know that I am God. और वो कहता है शांत रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। A woman of God, a man of God said, God's acquaintance is not made hurriedly. और परमेश्वर के एक जन ने कहा कि परमेश्वर के साथ जान पहचान जो है वो जल्दबाजी में नहीं हो जाती है। Yeah, to be alone with God is the secret of knowing Him and to be influenced by Him. और परमेश्वर के साथ अकेले होना वो उसे जानने का रहस्य है और उसके द्वारा आपके जीवन पर प्रभाव होने का उस पर परिणाम होता है। Let me tell you something. मैं आपको God is कुछ not बताऊं looking for workers as He's looking for sons and daughters. कि परमेश्वर कर्मचारियों को नहीं ढूंढ रहा है, लेकिन वो बेटे और बेटियों को ढूंढ रहा है। Yeah, such people where He can pour Himself in you. और ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनके द्वारा वो अपने आप को आप में उंडेल सकता है। A long time ago, someone had given me a poster, a big poster, on which these words were written, "Be still and know that I am God." और कई समय पहले किसी ने मुझे ये पोस्टर दिया था, ऐसा लिखा था उस पर्ची पे कि शांत रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। I did not know then the complete understanding of this word, but as I sat, I spent time, I realized that He is the one who is calling me and asking me, "You be still, I will do." और उस समय में मुझे इस वाक्य का पूरा अर्थ नहीं समझ में आया, लेकिन जैसे मैंने परमेश्वर के साथ समय बिताया और पूछा तो परमेश्वर ने मुझे बताया इसका अर्थ ये है कि तुम शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। Yeah, Jesus is calling us and saying, "Come to me." और यीशु हमें बुला रहा है, आमंत्रण दे रहा है और Yeah, कह रहा है मेरे पास आओ। Matthew 11:28 and 29. Many of you know. मत्ती का 11वां अध्याय वचन 28 से 29। Yeah, we know, but let's yield to do that. हम सब ये वचन जानते हैं, लेकिन हम चाहत रखें कि हम ये करें। Yeah, Jesus says,
come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. यीशु कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Yeah, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। Amen. The story of Mary and Martha is beautifully brings out good news of God's grace. और मरियम और मार्था की कहानी खूबसूरती से परमेश्वर के अनुग्रह को की अच्छी खबर को लेकर आती है। Yeah, salvation is not about what we do or what I do. It is about what Jesus has already done. और उद्धार उस बारे में नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ या करता हूँ, वो उस बारे में है जो यीशु ने पहले से ही कर दिया है। The cross did not just pay for our sins. It sets us free from the bondage of I have to do this and I have to do that. Only if I do this. और क्रॉस जो क्रूस है केवल हमारे पाप की कीमत नहीं चुकाता है, लेकिन हमें उन सारे बंधनों से तोड़ देता है जो कहता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना होगा, या ये सारी बातें। Yeah, because we are his children, kitchen service that Martha was involved in was good at, or at our work, will become easy as a result of our intimacy with God. क्योंकि हम उसके संतान है, जो हम किचन में काम करते हैं, जिसमें मार्ता अच्छी थी, या जो हमारा काम है वो हमारे लिए आसान होगा अगर हम यीशु के साथ करीबी रिश्ते में होंगे, तब उसका परिणाम जो होगा वो सारी बातें हो जाएगी। Yeah, we should be thinking about what Father is wanting us to do. हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि पिता क्या चाहता है, हम क्या करें। Yeah. We don't see these days. We don't see a horse cart or a buggy. और आजकल के दिन में हम जो घोड़ा गाड़ी होती है उसे हम ज्यादा अभी देखते नहीं हैं। Except on some seashores we may see it. कभी-कभी समुद्र के छोर पे वहां पर हम देखेंगे। But when we put work before worship, लेकिन जब हम काम को आराधना के पहले रखते हैं, it is like a horse cart. We put cart before the horse. तो ऐसा है कि वो घोड़ा गाड़ी के समान है, हम जो गाड़ी है उसे घोड़े के आगे रख रहे हैं। Yeah, the cart is important. The horse is also important. हाँ, गाड़ी जो है वो महत्वपूर्ण है, घोड़ा भी महत्वपूर्ण है। But the horse must come ahead of cart. लेकिन जो घोड़ा है उसे गाड़ी के आगे होना चाहिए। Otherwise, we will have to push the cart and you will get tired. या तो ऐसा होगा कि गाड़ी को हमें खींचना होगा और हम थक जाएंगे। When we are frustrated and weary, we can break under the pressure of the work and service. और जब हम थक जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, तो हम इस दबाव में आ जाते हैं कि हमें काम करना है, सेवा करना है। Yeah, there is always more to do, isn't it? You feel अभी और कुछ करना है। और हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए ज्यादा होता है, हमें लगता है मुझे और कुछ करना है। When we first spend time in His presence, when we take time to hear His voice, God provides the power we need to pull the heaviest of the load. और जब हम उसके साथ समय बिताते हैं, हम उसकी आवाज को सुनते हैं, तो परमेश्वर वो ताकत हमें देता है कि उस भार को, उस वजन को हम उठा ले। Yeah, Jesus' words to Martha are the words He wants to speak to your heart and my heart. और यीशु के जो शब्द है मार्था के लिए, वो ये शब्द है जो यीशु आपके हृदय को और मेरे हृदय से वो बातें करना चाहता है। You are worried and upset about many things, but only one thing is needed. और आप चिंता में हो, कई चीजों को लेकर नाराज हो, लेकिन एक ही चीज की आपको जरूरत है। One thing is not found in doing more. और वो एक चीज जो है वो ज्यादा करने में नहीं पाई जाती है। It is found by sitting at His feet. और वो पाई जाती है उसके चरणों में बैठकर। Yeah, the only requirement for a deeper relationship is found with God by showing up with a heart open to and ready to receive. और यीशु के साथ गहरी दोस्ती
दिखती है जब हमारा हृदय खुला होता है और ग्रहण करने स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। Yeah, in obedience to his invitation, we find the key to our godly spiritual desires. और जब हम उसके आमंत्रण की ओर आज्ञाकारी हो जाएंगे तो जो आत्मिक इच्छाएं हैं उसके लिए हमें चाबी मिल जाएगी। Yeah, because as we learn what it means to choose the better part, that is intimacy with Jesus, we begin to change. क्योंकि जब हम वो निर्णय लेंगे कि जो उत्तम है उसका चुनाव करेंगे तो यीशु के साथ हमारा करीबी रिश्ते की शुरुआत हो जाएगी। Amen. John Amen. 15:15 says, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. और यूहन्ना 15 के 15वें वचन में लिखा है, मैं तुम्हें सेवक कह के नहीं बुलाता हूँ क्योंकि सेवक को उसका जो स्वामी है उसका क्या व्यवसाय है वो पता ही नहीं है। Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my father, I have made known to you, and I want to make known to you. बजाय मैं तुम्हें दोस्त कह के बुलाता हूँ क्योंकि जो बातें मैंने पिता से सीखी है वो मैं तुम्हें जान पड़ता हूँ या सिखाता हूँ। Yeah, Jesus wants us to know his will for us. और यीशु चाहता है कि उसकी जो इच्छा है वो हमारे लिए वो हम उसे जान ले। And when we do that, we are transformed और जब हम वो करेंगे तो हम परिवर्तित हो जाएंगे at the feet of Jesus. यीशु के चरणों में। That is where it all begins, और वहीं पे उसकी शुरुआत होती है, down at his feet. उसके कदमों में, वहां पर We will see गहराई the में। transformation in the other stories in Mary and Martha in the Gospels. और जो ये परिवर्तन है दूसरी कहानियों में है, मैरी और मरियम और मार्था को लेकर दूसरे सुसमाचार में हम देखते हैं। Martha doesn't lay aside her personality, give up her hobbies in order to worship Jesus. और मार्था जो है वो अपनी जो उसको जो करना अच्छा लगता है उसकी जो अभिव्यक्ति है यीशु को आराधना करने के लिए उसे वो छोड़ नहीं देती है। Yeah, she receives Jesus' corrections and learns from it that while there is time for work, there is also time for worship. वो यीशु के सुधार को स्वीकार करती है और ये बातें सीख लेती है कि एक समय होता है काम के लिए और एक समय होता है आराधना के लिए। Yeah, later in the Gospels in John 11, we see when Martha and Mary's brother dies. और यूहन्ना के 11वें अध्याय में सुसमाचार में हम देखते हैं जब मरियम और मार्था का भाई जो है वो मर जाता है। When Lazarus dies, Martha is the one who doesn't get frantic. She still has faith. और जब लाजरस मर जाता है तो मार्था है वो घबराती नहीं है, उसमें तब भी विश्वास होता है। She is full of faith that if Jesus was here or if Jesus comes, she will see her brother again. और उसमें वो विश्वास है और भरोसा है कि अगर यीशु यहाँ पर आ जाएगा तो मैं मेरे भाई को फिर से जिंदा देखूंगी। Yeah, because it is impossible to be in the presence of Jesus and not change. क्योंकि ये नामुमकिन है कि हम यीशु की उपस्थिति में होकर भी परिवर्तित ना हो। Yeah, God is calling us to be intimate with him through our Lord Jesus Christ. और परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम उसके साथ करीब में आ जाए यीशु मसीह के द्वारा। Yeah, Psalm 34:4-5 says, और भजन संगीता 34 वचन 4 और 5 में लिखा है, I sought the Lord and he answered me. He delivered me from all my fears. This is what David is saying. और वहां पर लिखा है, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। And listen to this. Those who look to him are radiant. Their faces are never covered with shame. जिन्होंने उसकी और दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। Just another few minutes. और कुछ मिनट और लूंगा। Hospitality. अतिथि सत्कार के बारे में। Yeah, before I say hospitality, I'm sure last week many of us or all of us enjoyed sharing the gospel in 15 seconds. और जब अतिथि सत्कार की बात करूं तो मेरी आशा है गए हफ्ते सभी ने आनंद लिया 15 सेकेंड में अपनी गवाही देने में। Yeah, thanks to Jesse, Valerie and Daphne. और धन्यवाद जेसी का, वैलेरी का और डैफ्नी का। Yeah. Now Luke 10:38 shows us that Martha is a woman with a gift of hospitality. और लूका का 10वां अध्याय वचन 38 हमें बताता है कि मार्था ऐसी महिला है जिसे अतिथि सत्कार का वरदान है। Amen. These days, God is asking us to reach out to
people, those who do not know Jesus, and make Jesus famous, isn't it? और इन दिनों में परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम यीशु के साथ, यीशु को लोगों के साथ बांटे और यीशु को प्रसिद्ध कर दे। Yeah, because of Martha's hospitality, all those who were there at that time in that house, I'm sure they were so blessed. और मार्ता ने जो अतिथि सत्कार किया उस दिन घर पे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि उन सभी ने कितना आशीष पाया होगा। Yeah, let us learn this from Martha, that she catered to people. और आइए हम मार्था से ये बातें सीखें कि उसने लोगों की सेवा की, लोगों तक वो पहुंची Yeah, she was hospitable. और वो अतिथि सत्कार करने वाली महिला थी। We can have our friends and family over just for a cup of tea or just for snacks. और हम भी हमारे दोस्तों को या परिवार के लोगों को बस घर में आमंत्रण दे सकते हैं, चाय कॉफी के लिए या Yeah. कुछ नाश्ते के लिए। Yeah, this way we can build up relationship and strengthen them. और इस तरह से हम रिश्ते को उनके साथ बना सकते हैं और उन्हें मजबूती दे सकते Yeah, हैं। God wants our relationships to be strengthened. और परमेश्वर चाहता है कि हमारे रिश्ते मजबूत हो जाए। And when we do that, we may get an opportunity to share our testimony or share even the gospel. और जब हम वो करेंगे तो हमें मौका मिलेगा हमारी गवाही बांटने का, या शायद सुसमाचार बांटने का भी हमें मौका मिलेगा। Hospitality is such an amazing gift that God has given us. और अतिथि सत्कार ये इतना अद्भुत ऐसा वरदान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। In these days, many of you meet, sorry, many of you meet in the life groups, and you have fellowship and prayer and also meals. और इन दिनों में आप में से कितने लोग हैं घर की सभा में मिलते हैं, वो आप साथ में संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं और शायद खाना भी आप साथ में खाते हैं। Yeah, I am sure you must be getting to share your stories also. और मुझे ये पक्का पता है शायद आपको मौके मिलते हैं, आपकी कहानियां भी आप बांटते हैं। Yeah, in our early Christian life, we would offer tea to watchmen where we were staying in our colony. और हमारे मसीह जीवन के शुरुआती भाग में जिस कॉलोनी में हम रहते थे, वहाँ के वॉचमैन को हम चाय के लिए पूछते थे। Yeah, as the friendship built up, we got opportunity to share gospel with them. और जैसे उनके साथ दोस्ती हमारी बढ़ गई तो हमें मौका मिला उनके साथ सुसमाचार बांटने का। Also, we probably didn't miss opportunities to celebrate birthdays. और हमने मौके नहीं खोए, ज्यादातर अगर किसी का जन्मदिन होता तो हम जरूर उसका उत्सव मनाते थे। Yeah, some of the youngsters were just coming to faith. और कुछ युवाएं हैं बस विश्वास में वो कदम ही रख रहे Yeah, थे। and when we did that, many lives were touched. और जब हम ऐसा करते थे, जन्मदिन मनाते थे, तो कई जीवन जो है स्पर्श हुए, बदल गए। One such time after one of the baptisms, we had 60 plus people over us for meal. और एक समय ऐसा था, बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा के बाद में 60 से अधिक लोग खाने पर हमारे घर पर हमने बुलाया। Those who took baptism and those who came alongside their families, relatives, I'm sure they all were blessed. और जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया वो लोग थे, उनके जो दोस्त थे, रिश्तेदार थे, वो सबको हमने घर पे बुलाया और मुझे ये पक्का पता है कि उन्होंने आशीष पाया। On that day, if anyone would have told Patricia and me, hey, Mike, be like Mary and sit and listen. और अगर उस दिन कोई हमसे ये कह देता बुला के कि सुनो माइकल और पेट्रिशा, मैरी की तरह, मरियम की तरह बनो, यीशु के चरणों में बैठो और सुनो, Yeah, we would have looked at them. Huh? What are you saying? तो हम उनकी ओर देखते और कहते, क्या तुम क्या कह रहे हो? We chose to prioritize everyone enjoying fellowship and sharing of stories as we served them. और हमने ये चुनाव किया कि प्राथमिकता दे कि संगति में आनंद ली जाए और कहानियां बांटी जाए और उनकी सेवा की जाए। Yeah, let me finish by this verse. Acts 2:46-47 says, और इस वचन के साथ मैं अंत करूंगा। प्रेरित का दूसरा अध्याय वचन 46 से 47। every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे।
और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। Amen. So in these days, as we want to make Jesus famous or we want to share the gospel, let's use the tool of hospitality. It's a great tool. और इन दिनों में जैसे हम चाहते हैं कि यीशु को प्रसिद्ध करें, यीशु के बारे में लोगों से बांटे, तो क्यों ना हम अतिथि सत्कार का साधन इस्तेमाल करें। Yeah, just as Martha invited Jesus and his disciples, let's invite our friends and our oikos. तो जैसे मार्था ने यीशु और उनके चेलों को आमंत्रण दिया, तो आइए हम भी हमारे जान पहचान के लोगों को, हमारे ओइकोस को आमंत्रण दें हमारे घर पर। Amen. आमेन। Thank you for waiting and